और एक में स्कूल में, और अब यहाँ पर आ गए, लेकिन आपको इतनी चीज़ें याद हैं, सोशल, थैंक्स टू सोशल मीडिया, कि किसी की भी डिटेल मिल जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो चीज़ें आती हैं चली जाती हैं, वो एक अलग चीज़ है। हम सब आपस में कलीग्स हैं, एक दूसरे से सीख रहे हैं, और मैं आपसे सीख रहा हूँ, आप मुझसे सीख रहे हैं। तो टू माई लिटिल नॉलेज, वट एवर आई हैव ऑब्जर्व, वट एवर आई हैव लर्न फ्रॉम माई टीचर्स and even from my students, that I am going to present before you. I am not claiming that any knowledge is to my province. Everything is on means air and everything. Just I have made some efforts to collect those information and those ideas which are relevant to this very important topic, Indian knowledge traditions, with respect to National Education Policy 2020 and how it is going to be implemented, and many of its aspects is already implemented. So just let me share my slides, and then I'm also thankful for MMTCC, Aligarh Muslim University, and all my colleagues and participants. So just let me share my slides, then I'll start my discussion. So I think slide is visible, and I am also audible. Yes, sir, it's visible, sir, and you are also audible. Okay, thank you. So I have said the title that is regarding the methods that I have used the term pedagogy, and a little introduction about the literature and lexics that refers to the vocabulary or the terminology. And I have set this title for today's discussion, that's Indian Knowledge Tradition, Literature, Lexics, and Pedagogy. Here, lexics refers to certain specialized terminology that the aspects of vocabulary in Indian knowledge traditions. So the agenda for today's discussion, actually, I think it would be difficult to complete all the aspects, but I will try my best to touch almost all the aspects what I have set for discussion. Slides are more in number, but we will more concentrate on the knowledge aspects or the resources from where you may also take the other aspects or other detailed notes regarding those topics which I'm going to cover. So understanding knowledge traditions, philosophical sources, literature and vocabulary, then Indian pedagogy, illustrations from Upanishad, and the legacy. So, and continuity and consensus, the part of legacy is there. I will just have a little break because some technical issues are there. Otherwise, it will be off. Just 1 minute break I just need. सो यस आई एम बैक। तो लैपटॉप की बैटरी एग्जॉस्ट होने वाली थी, तो इससे पहले कि कोई विपदा आए मैंने पहले से ही उसको इंतजाम कर लिया। तो the vision actually of Indian philosophy, because I have used this term, understanding knowledge traditions and philosophical resources, because Indian knowledge traditions is very vast, and I will only touch the philosophical aspects or the philosophical legacy of those ideas which become the basis of our traditions in almost all the arenas of life. I am not touching the aspects of science and technology, aspects of astronomy, aspects of medicine, Ayurveda, and so on. A little idea you all have about it. So I will confine myself to the vision of Indian philosophy. The Indian philosophy, if you wish to have an idea, अगर एक शब्द में अगर आप कहें या एक वाक्य में अगर आप कहें कि भारतीय दर्शन है क्या, भारतीय ज्ञान परंपरा है क्या, तो
एक एडिज है, ऋग्वेद से एक श्लोक है, उसका एक अंश है, आनो भद्रकत्वयंत विश्वता, लेट नोबल थॉट्स कम टू मी फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। यानी जो भी अच्छे विचार हैं वो हर ओर से मेरी तरफ आए। ये एक प्रार्थना है ऋग्वेद में और उसका एक अंश है। ये एक पूरा श्लोक है, उसका मैंने छोटा सा पार्ट लिया है। ऋग्वेद में चैप्टर 1 से, वर्स नंबर 89 है। तो ये डिफाइन करता है, इट जस्ट गिव्स अ ग्लिम्स दैट व्हाट इज द नेचर ऑफ इंडियन फिलॉसफी। इंडियन फिलॉसफी इज बेस्ड ऑन द वेलफेयर ऑफ ऑल, and so is with the Indian knowledge traditions that talks about the welfare of all the creatures of God, irrespective of their origin, irrespective of their distinction in different aspects like caste, creed, color, religion, or ethnicity, or nationality, and so on. So universalism is the basis of भारतीय ज्ञान परंपरा। हम बात पूरे विश्व की करते हैं, पूरे ब्रह्मांड की बात करते हैं और उसमें रहने वाले हर प्राणी की बात करते हैं। तो अगर कोई भी अच्छा विचार कहीं से भी आ रहा है तो उसके लिए मन खुला हुआ है। दैट इज द ब्रॉड माइंडेडनेस, दैट इज द वेरी नेचर ऑफ इंडियन फिलॉसफी, एंड सो इज द इंडियन नॉलेज ट्रेडिशंस। अंडरस्टैंडिंग नॉलेज ट्रेडिशंस, द सेकंड एस्पेक्ट इज व्हाट इज IKS, व्हाट इज इंडियन नॉलेज। एक्चुअली अंग्रेजी में एक टर्म यूज किया गया जब NEP का ड्राफ्ट 2019 में तैयार हो रहा था और रिलीज हुआ पहला ड्राफ्ट, तो उसमें IKS टर्म था, इंडियन नॉलेज सिस्टम। बाद में फिर कोविड आया और कोविड के बाद फिर 2020 का ड्राफ्ट पूरा आ गया, कंप्लीट 66 पेजेस का। उसमें भी IKS था, लेकिन रिसेंटली फिर अब उसमें भारतीय ज्ञान परंपरा, जब उसका हिंदी वर्जन हुआ तो उसको भारतीय ज्ञान परंपरा लिखा गया। अब कायदे में तो यहाँ पर S की जगह T होना चाहिए, लेकिन चूंकि ओरिजिनल ड्राफ्ट में था वो, तो उसको IKS ही रखा। सिस्टम एक टेक्निकल एस्पेक्ट है, इंडियन नॉलेज सिस्टम इस टेक्निकल एस्पेक्ट है, और ट्रेडिशंस की जब हम बात करते हैं तो वो फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट्स है। तो बस ये छोटा सा एक डिफरेंस है इसमें, इंडियन नॉलेज ट्रेडिशंस में जो परंपरा हर नॉलेज ट्रेडिशंस में, चाहे वो साइंस की हो, चाहे वो मेडिसिन की हो, चाहे वो एजुकेशन की हो, या लीगल सिस्टम हो, सोशल सिस्टम हो, कोई भी सिस्टम हो, उसमें उनकी अपनी उन सिस्टम्स की अपनी, उन ट्रेडिशंस की अपनी एक महत्व है, उनका अपना एक स्थान है। और सिस्टम ये होता है कि टेक्निकल एस्पेक्ट क्या है नॉलेज का, लाइक यू टॉक इन फिलॉसफी अबाउट द एपिस्टेमोलॉजी, व्हाट इज नॉलेज and what are the sources of knowledge, what is the validity of knowledge, and how knowledge was created, and how knowledge was preserved, and how it was disseminated in different ways. और किस तरह की नॉलेज होती है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज क्या है, टेक्निकल नॉलेज क्या है, इंजीनियरिंग नॉलेज क्या है। तो ये उस नॉलेज के टेक्निकल एस्पेक्ट्स को हम सिस्टम में लेते हैं, तो उसमें साइंस, इंजीनियरिंग, तमाम और दूसरी चीजें भी आ जाती हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि द ग्लिम्सेस ऑफ आवर पास्ट हैव बीन वोवन इन फील्ड्स लाइक, अब ये वो तमाम एरियाज हैं, फिलॉसफी, ग्रामर, लिटरेचर, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, पॉलिटी, मेडिसिन, एंड सो ऑन। यू सी हियर कि ये बहुत सारी फील्ड्स हैं और हर फील्ड्स में कहीं ना कुछ कंट्रीब्यूशन है इंडियन नॉलेज ट्रेडिशंस। तो अवर क्वेश्चन इज व्हाट कंप्राइजेज IKS। तो IKS में फिर है क्या? In order to understand, in order to have a glimpse or comprehension of any idea, we have to assume something, that is postulations. तो जब हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करते हैं तो पहला टर्म, पहला assumption ये आता है कि भारतीय ज्ञान परंपरा क्या एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ नॉलेज है, या कोई नया डिसिप्लिन है, या फिर ये कोई नया करिकुलम का पैटर्न है, या क्या है। तो ये कोई एक नया डिसिप्लिन नहीं है, रादर इट इज द जस्ट रिवाइवल ऑफ ऑल दोज ट्रेडिशंस in a compact form, in a consolidated form, और in a memorable form. तो बेसिस इसका यह है कि इंडियन वे, भारतीय दृष्टि, इज सस्टेनेबल एंड स्ट्राइव्स फॉर वेलफेयर ऑफ ऑल। ये मान्यता है, ये अजम्पशन है, पॉस्टुलेशन है कि जो भारतीय दृष्टि है वो सस्टेनेबल है और वेलफेयर ऑफ ऑल, जैसे हमने शुरू में ही देखा अनो भद्रकत्वयंत विश्वता में, कि लेट नोबल थॉट्स कम फ्रॉम टू मी फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। और इसी तरह से कि जब वो
एक और वैदिक श्लोक है, उसमें वो कहते हैं कि ट्रुथ जो होता है वो एक ही होता है, उसको डिस्क्राइब अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सत्य जो है वो एक ही है, और जो विप्र लोग हैं, जो विद्वान जन हैं, वो उस सत्य को बहुधा वदंती, बहुत तरीके से अलग अलग विभिन्न प्रकार से वो कहते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, बताते हैं। तो सत्य एक ही है, ट्रुथ इज ओनली वन। ये वेलफेयर ऑफ ऑल, इसलिए कि अगर कोई कहे कि भाई ट्रुथ आपका ठीक नहीं है, हमारा ठीक है, तो ठीक है, आपकी दृष्टि अलग है, हमारी दृष्टि अलग है, लेकिन सत्य तो एक ही है। तो इस बात में कंसेंसस है कि देयर इज नो डिस्प्यूट ऑन द बेसिस ऑफ द स्पिरिचुअल यूनिटी। हो सकता है डाइवर्सिटी आउटर हो, लेकिन इंटरनल या इनर एस्पेक्ट के ऊपर तो वो यूनिटी ही है। इसीलिए वो वेदों में पहले ही कह दिया गया कि एकम सद विप्र बहुधा वदंती। और इसी बात को फिर जब 16 सेंचुरी में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक किताब लिखी, जो कि रामायण का अवधि में वर्जन है, उस पर बेस्ड है, श्री रामचरितमानस। उसमें एक चौपाई में वो लिखते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाही सुनही बहु विधि सब संता। कि हरि जो है वो तो अनंत है, द नेचर ऑफ गॉड इज डाइवर्सिफाइड, वो तो इनफाइनाइट है। और कहते हैं सुनते हैं बहु विधि सब संता, जितने भी संत लोग हैं, मुनि जन हैं, ऋषि जन हैं, सूफी हैं, महात्मा हैं, ये जब उस गॉड की बात करते हैं, उस सुप्रीम पावर की बात करते हैं, तो नाना प्रकार से कोई कहानी कहता है, कोई नाच के, कोई गा करके, कोई रो करके, कोई हंस करके, वो बताता है उसको। लेकिन बात वो अपने एक ही महबूब की कर रहे हैं, अपने उसी महबूब की कर रहे हैं जिससे उनका दिल लगा हुआ है। तो वही बात 16 सेंचुरी में तुलसीदास कहते हैं, जो बात वेदों में हजारों साल पहले कह दी गई। तो ये कंटिन्यूटी और कंसेंसस है, ये भारतीय दृष्टि है कि दृष्टि नहीं बदली, तरीके बदल गए हैं, परसेप्शन बदल गया। जैनिज्म में इसी परसेप्शन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कहते हैं स्यादवाद, कि मैं जहां से देख रहा हूं वो मेरी दृष्टि है, और उसी सत्य को आप जहां से देख रहे हैं वो आपकी दृष्टि है, लेकिन सत्य तो एक ही है। ये दृष्टि जो होती है, जैनिज्म ये कहता है, जैन दर्शन ये कहता है कि ये 7 तरीके का विजन हो सकता है। जैसे गिलास में पानी है, आधा है, आपने कहा आधा भरा हुआ है, मैंने कहा आधा खाली है। फिर किसी ने कह दिया न भरा है न खाली है। फिर किसी और ने कह दिया खाली भी है, भरा हुआ भी है। फिर किसी और ने कह दिया कि न खाली है न भरा हुआ है, तो इनडिस्क्राइबेबल है। तो इस तरह से 7 विजन हो जाते हैं किसी एक चीज को देखने की। ये बात जैन फिलॉसफी कहती है। तो ये भारतीय दृष्टि है। भी आगे एग्जाम्पल से इस बात को और समझेंगे कि हर एरिया में अलग अलग नजरिए से, लेकिन वो जो एसेंस है वो एक ही रहता है, वेलफेयर ऑफ ऑल और सस्टेनेबल एंड स्ट्राइव्स। मतलब 5000 साल पहले जो बात कही गई है वो आज भी उतनी ही सत्य है जितनी पहले थी, या जहां से फिलॉसफी बिगिन। 5000 कोई एक ऐसा कैलकुलेशन नहीं है कि किसी ने बिल्कुल उसको कैलकुलेट करके और आपको सेकंड टू सेकंड बता दिया। वो एक कंसोलिडेटेड, एक होलिस्टिक एस्पेक्ट है। तो उसको 5,500 4,500 भी मान सकते हैं आप चाहें तो, 4.25 भी मान सकते हैं, उसमें कोई ऐसा मुजायका नहीं है। एक कंसोलिडेटेड, क्योंकि ये संस्कृति जो है वो बहुत पुरानी है। और दूसरा कि द इंडियन नॉलेज सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ, अब इसमें 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, दिस इज द बेसिस: ज्ञान, विज्ञान एंड जीवन दर्शन। जीवन दर्शन, द वे यू लुक एट द लाइफ, वहीं से भारतीय दृष्टि डेवलप होती है। एवरीवन हु इज लिविंग इन इंडिया और हु लव इंडिया has developed a particular way of looking at the phenomena, looking at the things, looking at life, looking at death, and every aspect of life and death even. हर चीज को देखने का एक नया तरीका है, एक नई दृष्टि है, जिसको आप कह लें। नई मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जितनी बार आप चीजों को देखते हैं उतनी बार उसमें एक नयापन मिलता है, क्योंकि दर्शन जो है हमारे यहाँ अप्लाइड है, व्यावहारिक है। दर्शन हमारे यहाँ भारत में दर्शन कोई लिखी हुई थियोरी का नाम नहीं है। आज अगर हम दुनिया को देखते हैं तो एक नजरिया है, और कल अगर कोई दुनिया हमारे सामने आती है और हम उसको देखते हैं तो हमारा नजरिया बदल सकता है। अब वो बदला हुआ नजरिया भी भारतीय दर्शन ही हमको बताता है, और जो पहले का नजरिया था वो भी भारतीय दर्शन। तो भारतीय दर्शन में इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है
कि वो रिजिड नहीं है, रिजिडिटी उसके अंदर कहीं नहीं है, बदलाव हमेशा है, चेंज हमेशा है, और चेंज के लिए हमेशा वो खुला हुआ है। वेस्ट में क्या होता है कि आज एक थियरी दी जाती है और उस वो थियरी फिर रिजेक्ट होती है और उसके बाद फिर दूसरी थियरी स्टैब्लिश होती है। और वो कहते हैं, जैसे बच्चे नहीं, बचपन में हम लोग खेल खेला करते थे, क्रिकेट में थोड़ी सी बेईमानी हो गई, किसी ने बॉल टच कर दी विकेट से जाके, तो पूरा खेल वेल सब विकेट, चलो फिर से खेलेंगे, अब ये पिछला जो 1 घंटे का खेल हुआ वो बेकार हो गया, अब नए सिरे से खेलेंगे। तो वेस्ट में जो फिलॉसफी है वो ऐसे ही है कि 60-70 साल तक कोई एक फिलॉसफी स्टैब्लिश हुई, और उसके बाद अचानक एक फिलोसफर, उसने कहा कि वो पिछला जो था वो सब आउटडेटेड था, बेकार था, खराब था, अब ये नई फिलॉसफी हम लाते हैं, अब वो चलेगी, अब पूरा वेस्ट उसके पीछे चलेगा। फिर 20-30 साल 40 साल के बाद फिर वो फिलॉसफी आउटडेटेड हो जाएगी, फिर दूसरी आ जाएगी। भारतीय दर्शन में ऐसा नहीं है। भारतीय दर्शन में पूर्व पक्ष जरूर होता है, लेकिन वो पूर्व पक्ष कभी भी आउटडेटेड नहीं होता है, वो पैरेलल चलता रहता है, वो बना रहता है, और उसके साथ एक दूसरा दृष्टिकोण विकसित होता है, दूसरे तरीके से दुनिया को देखने का नजरिया डेवलप होता है, और हम उसके साथ एक दूसरा दर्शन जीवित करते हैं। लेकिन पुराना दर्शन जो है वो मरता नहीं है, वो उसके साथ ही चलता रहता है, क्योंकि संसार बदलता है तो दर्शन भी बदलेगा। इसीलिए शब्द दर्शन है। दर्शन मतलब देखना, ये व्यवहारिक है। तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि ट्रेडिशन ऑफ वैलिडेटिंग एंड पुटिंग इनटू प्रैक्टिस हैज इंपैक्टेड आवर एजुकेशन, आर्ट्स, एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ, जस्टिस, हेल्थ, जितने भी एरियाज हैं, एग्रीकल्चर भी है इसमें, नर्सिंग भी है इसमें, मेडिसिन भी है, education भी है, all the arenas of knowledge traditions, they all have adopted this particular way of looking at the things, और उसी तरह से वो देखते हैं चीजों को। और चौथी चीज है कि दिस हैज इन्फ्लुएंस्ड क्लासिकल एंड अदर लैंग्वेजेस ऑफ भारत, और इंडिया की जो हिंदुस्तान की तमाम भाषाएं हैं, उन भाषाओं पर भी इस भारतीय दृष्टि और इस जीवन दर्शन का असर पड़ता है, और उसमें लिखे जाने वाले साहित्य पर भी इसका असर पड़ता है, और उसमें ओरल ट्रेडिशंस हो, आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस हो, तो कहीं ना कहीं आपको वो फिलोसफी, भारतीय दर्शन जो होता है वो नजर आता है। अब कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं इन चीजों को कि अब यहाँ तक इतनी बात समझ में आ गई कि नॉलेज ऑफ इंडिया इन दिस सेंस इंक्लूड्स नॉलेज फ्रॉम एंशिएंट इंडिया and its successes and challenges, and a sense of India's future aspirations specific to education, health, environment, and indeed all aspects of life. तो particularly Genesis जो है वो तो ancient India है, but it is not confined only to the ancient India. That is, आगे एक स्लाइड है, उसमें कुछ fallacies हैं, कुछ facts हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे, then I will clarify this term. Then aims and objectives, I will not concentrate on it because everybody knows that what are the aims and objectives of this Indian knowledge traditions, to just remind our own treasure of knowledge and how to disseminate the ideas to the whole world, which was sometimes considered as outdated. अब यह है कि व्हाट इज भारतीय दृष्टि, इंडियन नॉलेज ट्रेडिशंस, जो अभी हम बात कर रहे थे, ये है क्या भारतीय दृष्टि। अब इसके एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। वे ऑफ परसेप्शन इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, जीवन के जितने भी जराए हैं जीवन को जीने के या जीवन को देखने के, चाहे वो एजुकेशन हो, आर्ट्स हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, या जीवन को डिपिक्ट करने के, हम हर जगह यही तो करते हैं कि जो लाइफ में हमारे एक्सपीरियंस है उसको डिपिक्ट करना, यही तो जीवन का काम है। जस्टिस, हेल्थ, मैन्युफैक्चरिंग एंड कॉमर्स, और ये जिंदगी आगे कैसे बढ़ेगी, तो एक पर्टिकुलर वे है हमारा उसको देखने का, परसेप्शन है। इन्फ्लुएंस इन क्लासिकल लैंग्वेज, ये बात पहले हो चुकी है। सोशल एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस हो लाइफ में, वो बात हो चुकी है। अब देखिए एग्जाम्पल ये है कि स्कूलों में सुबह में प्रार्थना होती है, और हम अपना दिन शुरू करते हैं प्रार्थना से, अक्सर क्योंकि केंद्रीय विद्यालय में ये प्रार्थना होती है इसलिए मैंने इसका एग्जाम्पल लिया। बाकी हिंदुस्तान में, पूरे भारत में अलग अलग स्कूल्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कूल्स हैव देयर डिफरेंट असेंबलीज, बट दे हैव, दृष्टि एक ही है उनकी, कि वो याद करते हैं उस सुप्रीम पावर को कि जो इस पूरे ब्रह्मांड को, इस पूरे यूनिवर्स को एक एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। और ये समझा जाता है भारतीय दर्शन में कि जो इल्म है, जो ज्ञान है, उसका स्रोत वही सुप्रीम पावर है। वैदिक दृष्टि से अगर आप देखें तो वो ब्रह्म है, और अगर कुरान के एस्पेक्ट से आप देखें, इस्लामिक दृष्टि से आप देखें, तो वहां पर भी इल्म जो है, दैट इज द फाइनेस्ट
ट्रेट ऑफ गॉड, अल्लाह। और कुरान में कहते भी हैं कि अल्लाह जो है वो उसकी सबसे बड़ी सिफत जो है वो इल्म है, वो अलीम है, मतलब इल्म का एक सोर्स है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ नॉलेज। तमसो में ज्योतिर्गमय, इसका मीनिंग सब जानते हैं कि अंधकार से प्रकाश की तरफ मुझे ले जाओ। अब सिंबॉलिकल क्या है? तमस कहते हैं अंधकार को, लेकिन इसका सिंबॉलिकल मीनिंग है, अंधकार कहते हैं अज्ञान, दैट इज द इग्नोरेंस। और ज्योति सिंबॉलिकली इसको नॉलेज को कहते हैं। तो कहा यह जा रहा है कि अज्ञानता के अंधेरे से मुझे ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाओ, ये प्रार्थना की जा रही है। और इस प्रार्थना से स्कूल की शोभा शुरू होती है। अब इसी बात को मृत्योर्मा अमृतम गमय, कि मृत्यु से अमरता की ओर ले जाओ। ये कौन सी मृत्यु है और कौन सी अमरता है? तो सिंबॉलिकल मीनिंग ये है कि इंसान अगर अज्ञानी है और उसके पास ज्ञान नहीं है, पूरा जीवन उसका बगैर ज्ञान के गुजरा है, तो वो मृत के समान ही है। यानी वो शरीर से तो जिंदा है, लेकिन आत्मा उसकी जो है वो मृत ही है। उस मृत्यु से अमरता, यानी जब आपका शरीर भी मर जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, उसके बाद भी आप याद किए जाएंगे, तो ये तभी पॉसिबल है जब आपने कुछ ऐसा काम किया हो कि सदियां सदियां आपको याद रखें। तो वो ज्ञान के बिना नहीं हो सकता। तो इंसान अगर आज जिंदा है तो वो ज्ञान की वजह से। उर्दू में एक शेर किसी ने कहा कि उस प्याले में जहर था ही नहीं, वरना सुकरात कब का मर गया होता। तो सुकरात आज भी जिंदा है। अगर उस प्याले में सच में जहर होता तो सुकरात मर गया होता। उसका शरीर मरा है, सुकरात नहीं मरा है, आज भी जिंदा है। गांधी आज भी जिंदा है ना। तो इस तरह से चाहे वो गांधी हो, चाहे वो सुकरात का एग्जाम्पल ले लीजिए आप, चाहे आप किसी और व्यक्ति का एग्जाम्पल ले लीजिए, एपीजे अब्दुल कलाम का एग्जाम्पल ले लीजिए, या स्वामी विवेकानंद का एग्जाम्पल ले लीजिए। आज हम इनकी बात करते हैं, इनको याद करते हैं, तो ये लोग सच शरीर नहीं है, लेकिन इन्होंने जो काम किए हैं ज्ञान के, या उस बुद्धिमत्ता के, या उस जो पूरे एक ह्यूमन सोसाइटी के लिए, ह्यूमन वर्ल्ड के लिए जो काम किया है, उसकी वजह से उनको याद किया जाता है। और गीता में ये कहा भी गया है कि आत्मा जो है वो कभी नहीं मरती है। आत्मा अंग्रेजी में कहें तो स्पिरिट या सोल, तो स्पिरिट जो है दैट इज द एनर्जी टू वर्क समथिंग, एनर्जी टू डू समथिंग। तो ये स्पिरिचुअल लोग थे जिन्होंने, जो अमर हो गए। वही प्रार्थना यहाँ पर की जा रही है कि हमें उस मृत्यु से, कि जिसमें हम मिट्टी में मिल जाएं और उसके बाद फिर कोई हमको याद भी ना करे, या हमारा कोई ऐसा काम ही ना हो कि हमें जरूरत पड़े इस संसार में वापस याद करने की। तो ऐसी मृत्यु नहीं चाहिए। ऐसी मृत्यु चाहिए कि शरीर तो खत्म हो जाए लेकिन हम रहें, जिंदा रहें। वो है मृत्यु माँ अमृतम गमय। और इसी तरह से असतो माँ सत गमय, कि हमें असत्य से सत्य की ओर ले जाओ। अब ये कहने को तो एक कठोपनिषद की एक प्रार्थना है, 3 लाइनें हैं, और पूरे 10-12 साल हमने स्कूलों में प्रार्थना में पढ़ी हैं। लेकिन एसेंस इसका यही है, भारतीय दृष्टि के हिंदुस्तान का हर स्कूल इसी तरह की प्रार्थनाओं से शुरू होता है। अगर संस्कृत की नहीं होगी तो उर्दू में होंगी, उर्दू में नहीं होंगी तो अंग्रेजी में होंगी, किसी भी भाषा में हो। लेकिन भारत के किसी स्कूल में अगर मॉर्निंग असेंबली होगी तो उसका एसेंस यही होगा कि ईश्वर से यही प्रार्थना की जाएगी। इसी तरह से जब आजादी के बाद सिनेमा आया, फिल्में बनी, तो फिल्मों में बहुत सारे गाने लिखे गए, और उस जमाने के कवि भी क्या खूब लिखा करते थे। आजकल तो आप कोई भी चीज दे दीजिए, जैसे डांस होता है, किसी भी चीज को छाता पकड़ के डांस हो गया, तो ऐसी छाते पे गाना भी लिख दिया जाता है। ये आपका दौर है। लेकिन उस दौर में थीम और भारतीय दृष्टि वहां पर भी देखने को नजर आती थी कि जब गाने लिखे जाते थे फिल्मों के, तो उसमें भी ये देखा जाता था कि क्या मैसेज हमको देना है। तो एक फिल्म आई थी नाना पाटेकर की, शुरू की फिल्मों में से थी अंकुश। उसमें एक बड़ी अच्छी प्रार्थना थी, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। और उसमें एक अंतरा आता है कि दूर अज्ञान के हों अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहें हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, और बैर हो ना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। तो ये तमसो में ज्योतिर्गमय नहीं तो और क्या है कि दूर अज्ञान के हों अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे।
ये उसी तमसो ज्योतिर्गमय का ट्रांसलेशन है। और फिर बाद में बहुत सारे स्कूलों में यही इतनी शक्ति हमें देना दाता ये मॉर्निंग असेंबली बन गई और होने लगी। फिर इसी तरह से एक फिल्म आई थी, इनकी थी, दो आंखें बारह हाथ, जी शांताराम की। उसमें एक प्रार्थना बहुत मशहूर हुई थी, ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हों हमारे करम। ये सिनेमा का भी योगदान रहा। अब इन गानों में भी अगर आप देख लें, जो कि मॉर्निंग असेंबली बन गए बाद में, और भी बहुत सी बाद में फिल्में आई हैं जिसके गाने जो थे वो स्कूलों की प्रार्थनाओं में शामिल हो, हर जगह आपको वही भारतीय दृष्टि नजर आएगी। इसी तरह से कई बार मैंने देखा है दीवारों के ऊपर, जैसे पुलिस थाना है या कोर्ट है, कचहरी है, ऐसी जगहों पर जहां पर अथॉरिटीज काम करती हैं, खास करके पुलिस स्टेशन वगैरह, उनका अपना एक मोट्टो है, लेकिन उनकी दीवारों पर मैंने देखा है कहीं कहीं लिखा हुआ, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। दिस इज द फिलॉसफी दैट वर्क्स विद द इंडियन पुलिस सिस्टम। अब पुलिस का अपना एक मोट्टो है, वो एक अलग चीज है, एम्ब्लेम में उनके लिखा रहता है, लेकिन जो फिलॉसफी है इसके पीछे सदियों से चली आ रही है, वो गीता का ये श्लोक है, श्रीमद् भागवत गीता, जिसमें जो मशहूर श्लोक है उसकी ये लाइन है, यदा यदा हि धर्मस्य वाला जो श्लोक है, तो उसमें एक लाइन ये आती है श्लोक में कि परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, कि फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द गुड एंड फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द विकेड। तो मैंने बहुत पहले किसी पुलिस स्टेशन की दीवार पे ये लिखा हुआ देखा था वहां पर, तो मैं बड़ा उस वक्त आश्चर्य में था, और उस वक्त शायद स्कूल स्टूडेंट था। लेकिन हाँ, और गीता और उपनिषद वगैरह हमारे घर में बचपन से रहे हैं, तो मुझे इतना तो आइडिया था कि ये भगवत गीता का श्लोक है। तो मैंने घर जा करके पूछा, तो फिर बताया मेरे फादर ने मुझे कि ये इंडियन फिलॉसफी है, और इस पर काम करती है भारत की जो इस तरह की पावर्स हैं, और ये एंशियंट टाइम से चला आ रहा है। पुलिस डिपार्टमेंट ने कोई नई चीज अडॉप्ट नहीं की है, एंशियंट टाइम में चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने से ये मोटो रहा है। जो प्रोटेक्शन के लिए जो फोर्सेस हुआ करती थी राजाओं के पास, उनका ये मोटो रहा करता था। इसी तरह से अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपना एक एम्ब्लेम जो है, एम्ब्लेम तो नहीं, जो उनका आदर्श वाक्य है, उसको अभी बदल दिया है कुछ दिन पहले। वो ये नीचे लिखा हुआ, यतो धर्मस्ततो जया। पहले यहाँ पर सत्यमेव जयते लिखा रहता था, लेकिन अब अगर आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाकर चेक करेंगे तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि धर्म की विजय होती है। लेकिन पहले मुंडक उपनिषद का ये वाक्य था, सत्यमेव जयते। ये तो ये दोनों ही वाक्य जो हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय फिलॉसफी को रिफर करते हैं। चीजों को देखने का एक नजरिया है। तो कोर्ट का अब नजरिया ये बदल गया है, पहले नजरिया दूसरा हुआ करता था जो सत्यमेव जयते है, लेकिन नेशनल एम्बलम पे अभी भी ये लिखा है। तो ये मुंडक उपनिषद से आया है और सत्य की विजय होती है। इसी तरह से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली में कभी आप जाइए तो वहां पर ये कुमार संभव एक किताब है, एक नाटक है कालिदास का संस्कृत में, उसमें से ये वाक्य लिया गया है, शरीर माघम खलु धर्म साधनम। शरीर ही धर्म का पहला और उत्तम साधन है। यानी शरीर की अगर आप सेवा नहीं करेंगे तो फिर आप अपने आत्मा की सेवा कैसे कर सकते हैं? शरीर में ही तो आत्मा रहती है। तो शरीर जो है वो पहला है, और इसीलिए जो तैत्तिरीयोपनिषद है उसमें जब पंच महाकोश की बात की गई है तो सबसे पहला जो स्टेप है, जो लैडर है, जो कोश है, वो अन्नमय कोश ही है। फिर उसके बाद प्राणमय कोश है, फिर मनोमय, और फिर जाकर के विज्ञान और आनंदमय पर पहुंचते हैं। तो शरीर पहला है, साधन है आत्मा तक पहुंचने का। तो ये भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने, अब आप कहेंगे यहाँ तो बड़े बड़े एमबीबीएस और एमडीज वगैरह और साइंस की पढ़ाई होती है, अंग्रेजी में पढ़ाई होती होगी, ये कहाँ से ये लेकर के आ गए शरीर माघम कलम? ये तो उनकी किसी किताब में पढ़ा ही नहीं जाता है। यही तो भारतीय दृष्टि, कि the way they serve the people as a doctor, they should keep in mind that what you are going to do, how you have to make realize your patients that your body is important for you. Even if you are a religious person, you are a spiritual person, whatever you be, but your body is your first priority. Otherwise, you can't concentrate in your work, whether it's business or it's education or it's service or profession, any kind of thing. So that comes from one of the Indian knowledge traditions, that is the marvelous writing of Kalidas, Kumar Sambhav. Another, in universities, you see that we normally write on the logos of the university.
certain mottos, certain adarshvak, certain adages. So one of the logo I have taken from Mahatma Jyotiba Phule, Rohilkhand University, Bareilly, UP. The written, it is written on the head, Charayaveti, Charayaveti. ये भी एक उपनिषद से लिया गया है और इसका तात्पर्य है कि हमें चलते जाना है, चलते जाना है, रुकना नहीं है। इल्म के रास्ते में, ज्ञान के रास्ते में जितनी भी बाधाएं हैं, हमें चलते जाना है। तो टैगोर ने गाना भी लिखा था, एकला चलो रे, सब जानते हैं। तो अब कुछ बात कर लेते हैं कि कुछ फैलेसीज और कुछ फैक्ट हो ये रहा है कि असल में इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन की जब हम बात करते हैं तो ड्यू टू समटाइम्स लैक ऑफ द सोर्सेज, ड्यू टू समटाइम इंटरप्रिटेशन और ड्यू टू समटाइम आवर ओन lethargy, we don't do the researches and we just accept whatever is provided to us in the plate. As a teacher, as an academician, as a scholar, we have to make some efforts to find out what it is. The task of government, हर वक्त सरकार का काम ये नहीं है कि आपको हर चीज जो है वो पूरा रेडीमेड फॉर्म में देगी। सरकार प्रोवाइड्स यू द गाइडलाइंस हाउ टू डू। जैसे नेशनल एनसीएफ जो है वो करिकुलम फ्रेमवर्क है, वो पूरा सिलेबस नहीं है, उस पर बेस्ड होकर सिलेबस टीचर्स को ही बनाना है, यूनिवर्सिटीज को ही बनाना है। तो आईकेएस एक आइडिया है, उसकी आउटलाइन है, उसकी थीम्स हैं, जो एक सिलेबस की फॉर्म में यूजीसी ने प्रोवाइड कर दी है। लेकिन अब इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, ये काम यूनिवर्सिटीज का, ये काम एकेडमिशियंस का, ये काम हिस्टोरियंस का है, फिलोसफर्स का है। एक पॉलिसी मेकिंग बॉडी अलग है, उसका काम एकेडमिक नहीं है। तो इसलिए बहुत सारी फैलेसीज, बहुत सारे कंफ्यूजन्स डेवलप हो गए हैं कि क्या ये इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन सिर्फ एक धर्म की बात करता है, आईकेएस क्या सिर्फ हिस्ट्री के एक छोटे से हिस्से की बात करता है, फिर बाकी पूरी हिस्ट्री कहाँ चली गई। भारत का 5000 साल का इतिहास है, तो 5000 साल के इतिहास में आईकेएस सिर्फ जो है वो वैदिक काल के ही हिस्से को आईकेएस माना जाएगा, या उसके बाद कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं था भारत में, या किसी और ने कोई कंट्रीब्यूशन दिया ही नहीं। तो यहाँ से फिर बहुत सारे कंफ्यूजन्स पैदा हो जाते हैं। दैट्स व्हाई देयर इज वन फैलेसी. It is my own understanding. I may be wrong. You may also make me correct sometimes, but it is my own understanding. Knowledge of India includes knowledge only from ancient India, specific to Vedic literature, and religious fervor of Brahminical or Hindu traditions, a later concept. Hindu traditions है वो later concept है। और अभी एनसीईआरटी की किताब में जो नया सिलेबस आया है, जो नई कंटेंट है, वहां पर भी इस बात को क्लैरिफाई कर दिया कि हिंदू इज ए जियोग्राफिकल वर्ड. It was given by the Iranians and later Arabs. The term Hindu is not available neither in Upanishads nor in Vedas nor in Puranas. वहां पर भारतवर्ष टर्म है और वहां पर हिंदू टर्म नहीं है, और बहुत सारी टर्म्स हैं। तो लेटर कॉन्सेप्ट है। तो इसलिए जो ट्रेडिशंस, अगर आप हिंदू ट्रेडिशंस कहेंगे तो फिर उसमें वैदिक ट्रेडिशन छूट जाता है। वैदिक ट्रेडिशन हिंदू ट्रेडिशन है ही नहीं, वो ट्रेडिशन अलग है, उसको वैदिक ट्रेडिशन ही कहा जाएगा। तो इसलिए ये जो टर्म का ओरिजिन ही बाद में हुआ है, वो ट्रेडिशन 5000 साल पहले कैसे हो सकता है। तो दैट्स अ फैलेसी। फैक्ट ये है कि नॉलेज ऑफ इंडिया इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस फ्रॉम एंशिएंट टाइम एंड द रिजल्ट ऑफ ए शेयर्ड एंड कंपोजिट कल्चर with their intellectual and spiritual traditions over the centuries. This is the fact actually. Then another fallacy is every branch of knowledge and its historical evolution globally has its roots in Indian traditions of Sanskrit knowledge system. There is another fallacy कि जो IKS है वो सिर्फ संस्कृत नॉलेज सिस्टम पर ही बेस्ड है। बाद में जो लिटरेचर आया वो पाली में भी है, प्राकृत में भी है। उसके बाद का लिटरेचर फिर जब फॉरेन इन्वेजन्स भी हुए, फॉरेन उसमें कॉन्ग्लोमरेशंस भी है, बहुत सारी ट्रेडिशन। सबसे पहले तो ग्रीक ट्रेडिशन आया जिसमें महात्मा बुद्ध की सबसे पहली मूर्ति हिंदुस्तान में बनी, तो वो ग्रीक कल्चर था। उसी जमाने में मौर्यन पीरियड में जब व्हेन चाणक्य वाज देयर, देन मेगास्थनीज केम टू इंडिया एंड ही रोट द इंडिका, द टर्म। तो ही आल्सो डिस्क्राइब द सर्टेन ट्रेडिशंस एट दैट टाइम। तो वो इंडिका जो है वो संस्कृत में तो ऑब्वियसली नहीं है, लेकिन उसमें बात की गई है। और उसके बाद फिर बहुत सारी दूसरी रीजनल लैंग्वेजेस में बहुत सारा लिटरेचर लिखा गया, बहुत सारा कल्चर उसमें प्रिजर्व हुआ, तो वो भी उसका पार्ट बना। तो दिस इज अगेन द फैलेसी के द ओनली द लिटरेचर विच इज रिटन इन संस्कृत नॉलेज सिस्टम, इट इज द ओनली सोर्स ऑफ आईकेएस। नो, नॉट एट ऑल।
द फैक्ट जैसे फर्स्ट वाली जो फैलेसी थी कि हिंदू ट्रेडिशन इज जस्ट द पार्ट ऑफ वास्ट इंडियन नॉलेज ट्रेडिशंस. It is not entirely that you say that the Brahminical or Hindu tradition is the another name of Indian knowledge tradition. It is just a part of this vast treasure of knowledge. Then the fact for the second fallacy is different traditions of knowledge developed in different parts of world in different time period. Their similarity sometimes is natural in the history of human race and common needs. तो जरूरी नहीं है कि कभी कभी ये होता है कि ये दूसरी फैलेसी इसलिए भी डेवलप हो गई क्योंकि रिसेंटली हुआ ये. अभी 2020 में या 22 में एक कैलेंडर आईआईटी खड़गपुर ने पब्लिश किया. अब उसमें पूरे वर्ल्ड की सिविलाइजेशंस को क्लेम किया गया कि उन सब का रूट्स जो था वो इंडिया में था, इंडियन सिविलाइजेशन में. और कि कहीं पर कोई भी टर्म है, रिलीजियस टर्म है, किसी और के रिलीजन में, किसी और के कल्चर में, कहा कि वो टर्म हिंदुस्तान के किसी गॉड से या किसी रिवर से या किसी थॉट से सिमिलर है और इसी का रूप जो है वहां पर अडॉप्ट किया गया है. तो एक ये थॉट डेवलप करने की कोशिश हुई कि हर चीज का जो सोर्स है वो इंडियन सिविलाइजेशन था, जबकि ऐसा हो ही नहीं सकता. और बाद में खुद आईआईटी ने डिस्क्लेमर अपनी वेबसाइट के ऊपर चलाया. काफी टाइम तक वो चलता रहा, अभी मैं देख रहा था, तो अब शायद उन्होंने हटाया इसको 2025 में. 2024 का पूरा कैलेंडर जो था वो एक साल तक वो डिस्क्लेमर चलता रहा. तो आईआईटी ने खुद कहा कि ये कैलेंडर जो पब्लिश हुआ है आईआईटी के नाम से वो हमारे यहाँ का नहीं है. आईआईटी के नाम से जरूर पब्लिश हुआ है लेकिन आईआईटी का इससे कोई लेना देना नहीं है. तो कभी कभी इस तरह ये कंफ्यूजन की वजह से हो जाता है, ऐसा नहीं है, ये बहुत ज्यादा एग्जैगरेशन हो जाता है चीजों का. फिर थर्ड फैलेसी है Indian philosophy and knowledge traditions are religious in nature and its other name is Sanatan or Hindu philosophy. ये सबसे इंपॉर्टेंट फैलेसी है कि इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन से उसको रिलीजियस कह देना, ये इसलिए फैलेसी है क्योंकि रिलीजन जो है दिस इज नॉट द एग्जैक्ट ट्रांसलेशन ऑफ धर्म. धर्म अपने आप में संस्कृत का एक वर्ड है जिसका अपना स्पेसिफिक मीनिंग है. और कोई अगर इसको रिलीजियस मान ले तो रिलीजन इज ए टर्म दैट कम्स फ्रॉम द वेस्ट and it has its own connotations. It is not equivalent to the actual meaning and interpretation of the term dharma. Dharma is a very broad term. Dharma religion से बहुत बड़ा टर्म है. धर्म जो होता है वो रिलीजन नहीं है उस सेंस में. रिलीजन मतलब जो ऑर्गेनाइज रिलीजन की बात हो रही है जिसमें एक गाइडलाइन है, डूज एंड डोंट्स हैं, जिसमें एक किताब है, देयर इज ए प्रॉफिट एंड certain punishments are there, just like a formal system of schooling. That is the western concept of religion. जैसे इस्लाम में एक टर्म है दीन और एक टर्म है मजहब, दोनों के अलग अलग मीनिंग है. In the same way, religion is not the exact translation of the term deen from Arabic. In the same way, तो religious मान लेना ये मतलब हम जो वेस्ट हमसे चाहता है वही कर रहे हैं. तो फायदा क्या हुआ फिर IKS का अगर ब्रॉड माइंडेडनेस ही डेवलप नहीं हुई. So religion is not the exact translation of the term dharma. The implications of dharma are wider and deeper, unlike religion. That's why terminology and vocabulary, lexics and knowledge traditions are very important aspects of Indian philosophy. That's why जो theme third है उसमें जो vocabulary और terminology की बात की गई है वो इसीलिए की गई है कि धर्मा का मीनिंग अलग है, परा अपरा विद्या अलग है, ज्ञान का मीनिंग अलग है, विज्ञान जो टर्म है वो अलग है. गुप्त काल में किताब लिखी गई अमरकोश. अमरकोश इज द फर्स्ट एनसाइक्लोपीडिया और डिक्शनरी ऑफ द वर्ल्ड इन द हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर. तो अमरकोश में ये शब्द आया विज्ञान. इसको कहा गया विशेष प्रकार का ज्ञान विज्ञान कहलाता है. तो साइंस बनने से बहुत पहले विज्ञान टर्म हमारे ग्रंथों में अवेलेबल था. अब बात करते हैं डिफाइनिंग द इंक्लूसिव आइडिया क्या है इंडियन नॉलेज ट्रेडिशंस का आउट ऑफ दिस डिस्कशन. कि इंडिया इन डिफरेंट टाइम पीरियड्स फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स विद रेफरेंस टू देयर एवोल्यूशन, डेवलपमेंट एंड कंटिन्यूटी विद चेंजिंग कॉन्टेक्स्ट कंटेंट. Sanskrit knowledge system is the one aspect. Literature written by people of various religions as well as non-religious people and by people from all walks of life and a wide range of socio-economic backgrounds over thousands of years. This is the collection of IKS. And the UGC draft itself, I have taken these lines from the UGC draft.
कि literature written by people of various religions as well as non-religious people, because this is the beauty of Indian philosophy and Indian knowledge traditions. What you say the religion, or what you say the non-religion, the Western connotation is that if you believe in the existence of a God as a supreme power who runs this world, you are religious. And if you follow that God, and if you don't follow that God, you are non-religious. जैसे इस्लाम में जो एक कॉन्सेप्ट है कि नॉन बिलीवर कौन है, नॉन बिलीवर वो है कि who the person who does not believe in the existence of God, that is Allah, that is non-religious, non-believer. और believer वो है who believes in the God which is given, मतलब जिस गॉड का आइडिया है इस्लाम। इन द सेम वे क्रिश्चियनिटी भी वही कहती है कि उनका जो आइडिया गॉड का, अगर आप उसमें बिलीव करते हैं देन यू आर रिलीजियस। इफ यू डोंट बिलीव इन दैट आइडिया ऑफ गॉड गिवन बाय देम, यू आर नॉन रिलीजियस पीपल। भारतीय दर्शन में जिसको आप कहते हैं कि जो हिंदू धर्म जिसको कहा बाहर के लोगों ने, ईरानियंस ने, अरब्स ने, यहाँ के रहने वाले लोगों को कहा कि दे आर द हिंदीज, दे आर हिंदूज, जैसा जियोग्राफिकल वर्ड। तो अब जो कल्चर है हिंदुस्तान का, उस कल्चर में जो फिलॉसफी है, जो वैदिक संस्कृति है, उसी में बाद में जब कल्ट्स बन गए शैव, शाक्त और वैष्णव, और उसके बाद फिर उसी को हिंदू धर्म के 3 संप्रदाय माना गया। फिर उसमें अवतार की कल्पना हुई, विष्णु के 9 अवतार हैं, शिव के 29 अवतार हैं, शाक्त के 9 रूप हैं देवी के। ये एक्सपेंशन जब हुआ, फिर उसके बाद वैदिक परंपरा से निकल करके और फिर आइडोल वर्शिप का भी आइडिया आया, जिसमें सबसे पहली मूर्ति जो है वो हिंदुस्तान में बनी महात्मा बुद्ध की, लेकिन चूंकि वो एक अलग कल्ट है, वो वैदिक आइडियोलॉजी के साथ मैच नहीं करती, तो फिर गुप्त काल में मंदिर बनाए गए। पहले मंदिर गुप्त काल में बने। ये जो एक्सपेंशन हुआ, अब ब्यूटी यहाँ पर जो मैं कहना चाहता हूँ, दैट इज द मेन एस्पेक्ट इज कि इन इंडियन फिलॉसफी एंड इंडियन नॉलेज ट्रेडिशंस एंड द वैदिक कल्चर देयर आर द 2 आइडियाज, आस्तिक एंड नास्तिक। बट दिस इज नॉट द वेस्टर्न कोनोटेशन ऑफ आस्तिक एंड नास्तिक। आस्तिक वो है, अगर आप रिलीजियस के पॉइंट ऑफ से देखेंगे, कि जो ईश्वर में विश्वास करता है, और नास्तिक वो है जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है। लेकिन ये मीनिंग ही नहीं है, सदियों से हम इसी मीनिंग को समझ रहे हैं। वैदिक दर्शन में या भारतीय ज्ञान परंपरा में या इंडियन फिलॉसफी में, मैं तीनों टर्म एक साथ यूज कर रहा हूँ, भारतीय दर्शन में आस्तिक उस दर्शन को कहते हैं, उस दृष्टिकोण को कहते हैं कि जो वेदों में बिलीव करता है। द फिलॉसफी, द दर्शन दैट हैज इट्स रूट्स इन Vedas, if we have our roots in the Vedas or the Vedic culture, then we are Astic. If we don't have our roots in the Vedas, it doesn't mean that we are out, कि हम आउटकास्ट हो गए, हम बाहर हो गए उससे, तब भी हम भारतीय ही कहलाएंगे। बट वी डोंट हैव आवर बिलीफ इन द वैदिक सोर्सेस। तो नॉन वैदिक जो सोर्सेस हैं, आप उसमें बिलीव कीजिए, वो भी भारतीय दर्शन का ही पार्ट है। जैसे जो ईश्वर को मानता है वो भी हिंदू है, जो ईश्वर को नहीं मानता है वो भी हिंदू है। दोनों के लिए रास्ता खुला है भारतीय दर्शन में, जैन और बुद्धिज्म। तो जैनिज्म जो है, दैट डजंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इन रिलीजियस सेंस, बट इट इज द पार्ट ऑफ इंडियन फिलॉसफी। इन द सेम वे चारवाक फिलॉसफी डजंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ ब्रह्म, इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, बट इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ इंडियन फिलॉसफी। दैट इज द ब्यूटी ऑफ भारतीय ज्ञान परंपरा, दैट डोर्स आर ओपन फॉर ऑल काइंड्स ऑफ पीपल। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि जैसे वेस्ट में क्रूसीफाई कर दिया जाएगा या सर कलम कर दिया जाएगा या आपको फांसी की सजा हो जाएगी इफ यू जस्ट से एनीथिंग अगेंस्ट द आइडिया ऑफ गॉड। यू हैव योर ओन गॉड, यू मे डिफाइन इन योर ओन वे। दैट इज द मतलब फ्रीडम इन इंडियन फिलॉसफी। इसीलिए शुरू में मैंने बताया आनो भद्रत्व विश्वता। और जहां पर जितने भी अच्छे आइडियाज हैं, कहीं से भी उसका एक्सेप्टेंस है। अगर कोई कहता है कि ईश्वर नहीं होता है, ठीक है, आप मानते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन विश्वास पर चलता है भारतीय दर्शन। और जो ये कहे कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, उसका विश्वास ये है कि वो ईश्वर को नहीं मानता, वो भी तो विश्वास यही कर रहा है। दैट इज द ब्यूटी। सो दिस इज द ब्रॉड माइंडनेस। और फिर थर्ड चीज, पाली, प्राकृत एंड अदर क्लासिकल इंडियन लैंग्वेज, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ इंडियन नॉलेज ट्रेडिशंस। पाली में बुद्धिज्म है, प्राकृत में जैनिज्म लिटरेचर है,
और अदर क्लासिकल इंडियन लैंग्वेजेस का लिटरेचर अगर आप लें, देन यू जस्ट टेक इनटू कंसिडरेशन द तमिल लिटरेचर बाय तिरुवल्लुवर, तिरुकुराल, मणिमेगलाई, Shilappadikaram, all these are the three classics and the classics of the Sangam period. And then you see that the Pallav, Chera, Rashtrakuta, and Chalukyas, and so many other ethnic groups of South India, even tribals of Northeast India, and also the stalwart figures during the period Raja Krishnadev Rai, like Vidyaran and Sayan, the great people, great saints of South India. और विद्यारण और सायण ने दो भाई थे और उन्होंने किताब लिखी थी जिसके सर्वदर्शन संग्रह। बाद में उसी से पता लगा कि कितने फिलोसफिकल स्कूल्स हैं हिंदुस्तान में, 9 स्कूल्स का तो उन्होंने जिक्र किया। और उसके बाद फिर बौद्ध दर्शन में भी बहुत सारे स्कूल्स डिवाइड हुए। So a tremendous contribution from all walks of life. So that's why I was saying that it is not just confined to the Sanskrit knowledge system. संस्कृत नॉलेज सिस्टम तो सिर्फ नॉर्थ इंडिया का कलेक्शन है, बाकी आप साउथ इंडिया कहाँ ले जाएंगे? आप ईस्ट इंडिया में चले जाइए, महाराष्ट्र में मराठी का जो लिटरेचर है वो कहाँ जाएगा? नॉर्थ इंडिया में आप देखिए, नॉर्थ ईस्ट में आप देखिए ट्राइबल लिटरेचर है वो कहाँ जाएगा? और बहुत सा लिटरेचर ओरल लिटरेचर दैट इज नॉट डॉक्यूमेंटेड इवन टुडे। मैं नॉर्थ ईस्ट में गया तो मैं पूरा कैंपस गया था नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी के, तो वहां पर मैंने देखा देयर आर द 3 ट्राइब्स, गारो, खासी एंड जयंतिया, एंड दीज आर आल्सो द नेम्स ऑफ द 3 हिल्स, और ये लैंग्वेजेस का भी नाम है। इनका ऑलमोस्ट लिटरेचर जो है वो ओरल कल्चर में है, ओरल ट्रेडिशंस में है, वो अभी तक डॉक्यूमेंटेड नहीं हो पाया है। तो एक ब्रिटिश लेडी थी, वो ऑलमोस्ट 70 ईयर्स बैक हिंदुस्तान आई थी एथनोग्राफिक रिसर्च करने के लिए। तो अब चूंकि एथनोग्राफी में आप जानते हैं कि इतना आसान नहीं होता है कि, और ट्राइबल कम्युनिटीज दे डोंट अलाउ यू टू एंटर इनटू देयर प्राइवेट स्पेस, दे डोंट अलाउ यू टू कलेक्ट द डेटा। वो आपसे, एक तो लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी वो अगर आप एलियंस हैं उनके लिए या स्ट्रेंजर हैं तो दे वोंट अलाउ यू टू इंक्वायर इनटू देयर ओन कल्चर। तो उस लेडी ने फिर यहाँ पर एक ट्राइबल से शादी की, उस ट्राइब लड़के से, और वो उस फिर ट्राइब की वो बहू बनी। ब्रिटिश लेडी, आप देखिए डेडिकेशन फॉर द रिसर्च। और उसके बाद वो हिंदुस्तान में रही और उन्होंने फिर गारो, खासी और जयंतिया और जो पूरा नॉर्थ ईस्ट का कल्चर था उस पर्टिकुलर ट्राइब का, उसके लिटरेचर को डॉक्यूमेंट किया। आज भी पूरा कैंपस में जाइए तो उस लेडी के नाम पर स्पेशल सेंटर ऑफ स्टडी बनाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। और वो, मैं 2015 में गया था, तब तक तो वो खैर थी, लेकिन उस वक्त उनकी एज 80+ से ज्यादा थी। तो ईश्वर करे वो हो, अभी खुदा करे जिंदा हो, लेकिन ऐसे लोगों का कंट्रीब्यूशन भूलना नहीं चाहिए। तो इस तरह से नॉर्थ ईस्ट में और न जाने कितनी भाषाएं होंगी कि जिसमें बहुत ट्रिमेंडस लिटरेचर होगा। दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन सिंस सेंचुरीज। ये भी उतने ही पुराने हैं जितने वेदास हैं। अरबिक, पर्शियन, उर्दू और हिंदी का लिटरेचर, मार्वलस लिटरेचर। पर्शियन में और अरबिक में अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम जो ट्रांसलेशंस हुए हैं संस्कृत लिटरेचर के वो इन 2 लैंग्वेजेस में। ड्यूरिंग द 800 ईयर्स ऑफ सुल्तान्स एंड मुगल्स, उनके पीरियड में मैक्सिमम ट्रांसलेशंस जो हुए हैं वो इन 2 लैंग्वेजेस में होते। दे हैव द रिच कल्चर ऑफ ट्रांसलेटेड ट्रीजर्स ऑफ इंडियन नॉलेज। अब जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दूं, एक हठ योग की एक किताब है जिसका नाम है अमृत कुंड। पूरे हिंदुस्तान में अमृत कुंड ओरिजिनल संस्कृत में अवेलेबल नहीं है। ये अभी 1-2 साल पहले तक की मेरे पास इंफॉर्मेशन है। अभी बीच में कहीं कोई मैन्युस्क्रिप्ट मिल गई हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरी नॉलेज में नहीं है। चेस्टर लाइब्रेरी है, तो वहाँ पर चेस्टर बर्नट ऐसे कुछ लाइब्रेरी है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में शायद। तो वहाँ पर एक साहब रिसर्च कर रहे हैं भारतीय हठ योग के ऊपर। तो वो इत्तेफाक से मैं पढ़ रहा था, एक दिन मेरे हाथ लगी वो चीज़, तो मैंने देखा कि उन्होंने काफ़ी काम किया उसके ऊपर। कार्ल अर्न्स्ट नाम है उनका, भारतीय हठ योगा पे काम कर रहे हैं। तो उन्होंने लिखा कि संस्कृत में ये किताब अवेलेबल नहीं है। अब ये किताब सिर्फ पर्शियन में और अरबिक में अवेलेबल है। और पर्शियन और अरबिक में इसको एक सूफी स्कॉलर हैं, ग्वालियर के थे, शेख गौस मोहम्मद, उन्होंने बहरुल हयात के नाम से इसका ट्रांसलेशन किया था। वो बहरुल हयात पर्शियन में अवेलेबल है, खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी पटना में भी अवेलेबल है और ब्रिटिश म्यूजियम में भी रखी हुई है। वो हठ योग की सबसे प्राचीन पुस्तक है।
अब वो देखिए कि बहुत सारे संस्कृत के ओरिजिनल ग्रंथ जो हैं वो खत्म हो चुके हैं, लेकिन पर्शियन और अरबिक में अभी भी अगर हम खोज करें तो वो मिलेंगे। जैसे एक दिल्ली सुल्तान था फिरोज तुगलक, तो अब उनके अपने पॉलिटिकल जो उनकी इमेजेस हैं वो अलग है, मैं उसमें नहीं जाता हूँ, बड़े खून खराबे भी किए इन लोगों ने, सब कुछ किया, लेकिन एक चीज है इन लोगों में, अगर कोई कहें कि कोई एक अच्छाई बताइए तो एक अच्छाई इन लोगों में ये थी कि ये विद्वानों का आदर करते थे, और पढ़ाई लिखाई की चीजों को ये अगर खुद नहीं पढ़ना जानते थे तो दूसरों से पढ़वा करके सीखने की कोशिश करते थे, ये एक अच्छाई थी। बाकी जितना खून खराबा किया उनका वो तो एक इतिहास उसका गवाह है, वो अलग चीज है। तो फिरोज तुगलक जो था वो उसी तरह का एक दिल्ली सुल्तान था। साउथ इंडिया में ज्वालामुखी टेम्पल था, उस टेम्पल में एक लाइब्रेरी थी, और उस लाइब्रेरी में बहुत बड़ी एक जखीरा था किताबों का। अब इसने वहां पर हमला किया उस मंदिर के ऊपर, ज्वालामुखी, ये इतिहास की घटना है, और उसके बाद वहां की सारी किताबों को ये दिल्ली लेकर के आया, और दिल्ली में इसने उन किताबों का पर्शियन में ट्रांसलेशन करवाया, बहुत सारी किताबें संस्कृत की। तो ये उसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इरफान हबीब ने अपनी किताब में इसको कोट भी किया है, लिखा भी है, कई जगह इसके कोट्स मिलते हैं। तो ज्वालामुखी टेम्पल की जो लाइब्रेरी है वो ट्रांसलेटेड वर्क के फॉर्म में सुरक्षित है, हो सकता है कुछ संस्कृत के मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं वहां पर। तो इस तरह के बहुत सारे काम अरबिक और पर्शियन में हुए हैं। जो बीच का जो 300-400 साल का जो एरिया है उसको आईकेएस में इंक्लूड नहीं किया गया है, एंशियंट इंडिया से सीधे मॉडर्न इंडिया पे आ गए हैं, और मेडिवल को छोड़ दिया गया है। तो भक्ति और सूफी ट्रेडिशन कहाँ जाएगा, जो कि स्पिरिट है इंडियन नॉलेज ट्रेडिशंस की। जितना प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है के ज्ञान परंपरा का, उसको अप्लाइड फॉर्म में तो भक्ति संतों ने ही प्रेजेंट किया है, सूफियों ने ही प्रेजेंट किया है। निजामुद्दीन औलिया ने हठ योगा को अपने यहाँ प्रैक्टिस में यूज किया था, और कई सूफी सिलसिले हैं जो योगा को और प्राणायाम को और बहुत सारे जो यौगिक क्रियाएं हैं उनको अपने यहाँ उसका पार्ट बनाया सूफीज्म का। इंडियन मिस्टिसिज्म, इंडियन सूफीज्म जो है, दैट इज द अनदर एस्पेक्ट ऑफ इस्लामिक मिस्टिसिज्म। तो ये सारी चीजें, अब आगे बढ़ते हैं, चलिए। ये एक टाइम स्केल है, मेजर नॉलेज ट्रेडिशंस, इस तरह से मूवमेंट है। जो पूरा डिस्कशन है हमारा उसको हम इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। पहला श्रुति पीरियड है जो 1500 से लेकर के 300 BC बियॉन्ड वैदिक तक। Then 6th century, first Renaissance, that is called when Mahatma Buddha raised the voice against the means overemphasis on the ritualistic aspect. He was not against the Vedic philosophy. He was not against the Vedas. Mahatma Buddha, neither Mahavir Jain, they were, these people were very stalwart, were broad-minded people. They just opposed the overemphasis on the rituals. अब हुआ यह था कि वैदिक पीरियड में तो ऋषि और मनीषी थे, और बाद में 500-600 साल के बाद, 1000 साल के बाद उनके बेटे, उनके बेटे, उनके बेटे, अब वो कोई ऋषि थोड़ा ना थे। वो जब कई जनरेशन चीजें हो जाती हैं तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी हो जाता है कि हमारे दादा जो थे वो बहुत बड़े ऋषि थे, तो हम उनके कुल में पैदा हुए तो हम भी वही। अब वो विद्वता तो नहीं होगी, वो ब्रह्म ज्ञान तो नहीं होगा जिस ब्रह्म ज्ञान के कारण लोग ब्राह्मण कहलाते थे। अब बाद में किसी ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ, ब्रह्म ज्ञानी के घर में, तो वो भी ब्राह्मण कहलाया। तो वो कास्ट बन गई। जो पहले ट्रेट था, जो पहले गुण था, जो पहले वर्च्यू था, जो आपका एसेंस था, वो बाद में आपकी कास्ट बन गई, जाति बन गई, लेकिन ज्ञान तो वो नहीं है। तो अब उनके पास बचा क्या? अब उनके पास सिर्फ रिचुअल्स ही बचे। तो वो रिचुअल समाज में इतने ज्यादा हो गए कि ज्ञान, कहीं ज्ञान कांड तो पीछे छूट गया और कर्म कांड आगे बढ़ गया। तो महात्मा बुद्ध ने उस चीज का विरोध किया था। तो इसलिए ये फर्स्ट रेनेसा कहलाता है जहां से बुद्धिस्ट स्कूल आया, और कहा कि इट वाज अगेंस्ट द ओवर एम्फेसिस ऑन द एस्थेटिसिज्म, कि हर आदमी संन्यास के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता। भाई वर्णाश्रम व्यवस्था में ये था कि 50 इयर्स जब आपकी एज हो जाएगी तो आप जो है वो फैमिली से आइसोलेटेड हो जाएंगे, और 75 पे आप समाज से भी आइसोलेटेड हो जाएंगे और जंगल में चले जाएंगे, दैट इज संन्यास आश्रम। तो आदमी की लाइफ देखा जाए तो सिर्फ 50 साल ही हुई, बाकी 50 साल तो वो आइसोलेशन में जी रहा है। तो आज के जमाने में तो मर जाएगा आदमी अगर उसको स्मार्टफोन न दिया जाए तो इसलिए महात्मा बुद्ध ने कहा कि समय बदलता है, गृहस्थ व्यक्ति भी मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है।
वो गृहस्थ में अपने कर्तव्यों का पूरा करे, और यही धर्म का मतलब है। धर्म का मतलब अपने धर्म का पालन कीजिए। अगर आप गृहस्थ हैं तो आप परिवार का ध्यान रखिए। इस्लाम में भी अलाउड नहीं है कि घर में अगर आपकी बूढ़ी माँ है और आप हज पर चले जाएं उसको छोड़ करके। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा किसी ने कि मैं हज पे जाना चाहता हूँ, तो आपने कहा कि तुम्हारी माँ है। कहा हाँ मेरी माँ है, घर में कोई देखभाल करने वाला नहीं है। तो कहा पहले अपनी माँ की देखभाल करो, हज पे बाद में जाना। तो पिलग्रिमेजेस भी जो हैं, जो इबादतें भी हैं, वो भी आपकी जिम्मेदारियों से ऊपर नहीं है। और जब इंसान डिवोटेड होकर के अपनी जिम्मेदारियों को निभाता है तो वही इबादत का रूप ले लेती है। तो महात्मा बुद्ध ने यही बात कही, सिंपल सी बात कही। तो उनकी बात को कहा गया मिडिल पाथ, दैट इज कॉल्ड द मध्यम प्रतिपदा मार्ग। द मिडिल है कि ना बहुत सख्ती है और ना बहुत ज्यादा आसानी है। सत्य बोलो, चोरी मत करो, सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह ब्रह्मचर्य, ये जैन धर्म के भी सिद्धांत हैं, बौद्ध धर्म के भी सिद्धांत है। फिर अष्टांगिक मार्ग वगैरह ये सब आप लोग जानते हैं। और फिर उसके बाद गुप्तास, मौर्यास, ग्रीक, रोमन्स, कुषाण, ये सारे एलिमेंट्स 6th century कन्वर्ट्स। फिर स्मृति पीरियड। स्मृति पीरियड इज particularly to be mentioned here because this was the age when society was in a very आप कहें ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में सोसाइटी यहाँ पर डेवलप हो गई थी। और जनपद बन गए थे, महाजनपद बन गए थे, अर्बनाइजेशन हो चुका था, बिल्डिंग्स बन गई थी, समाज में रहने के तौर तरीके बदल चुके थे, लोगों के लाइफ स्टाइल्स बदल गए थे, प्रोफेशंस बदल गए थे। और बिजनेस में पहले सिर्फ एग्रीकल्चर ही था, अब जो है इंटरनेशनल ट्रेड हो रहे थे। और जो कॉन्सेप्ट, एक श्रेणी, एक वर्ड आता है एंशिएंट इंडिया में, जिसको आज के जमाने में आप कहें कि ट्रेड यूनियंस तो नहीं कहा जाए, ट्रेड यूनियंस ही कह लीजिए, लेकिन वो उस फॉर्म में नहीं, जिसको कहा जाता था, अगर आपको याद हो तो बताएं। श्रेणी के लिए एक वर्ड अंग्रेजी में था, जैसे तेल का काम करने वाले, उनकी श्रेणी अलग है, कुम्हार का काम करने वाले, वो पूरा एक यूनियन अलग है उनकी। तो इसको गिल्ड्स, यस गिल्ड कहते थे, GUILT। तो गिल्ड का कॉन्सेप्ट गुप्त काल का बड़ा रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट था, और उस कॉन्सेप्ट आज के जमाने में, यस एनी क्वेश्चन इन टूडेज वर्ल्ड इफ यू सी, जो कॉन्सेप्ट हम बिजनेस में पढ़ाते हैं इंडस्ट्री का, तो इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट क्या है? वो गिल्ट ही है। एक इंडस्ट्री में, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, तो ऑटोमोबाइल में होंडा भी है, यामाहा भी है, उसमें सुजुकी भी है, उसमें और तमाम कंपनीज है, महिंद्रा भी है। तो गाड़ियां, ऑटोमोबाइल बनाने वाले सारी कंपनी को ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कहेंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट था इंडस्ट्री का, इसका क्लोन वहीं पर गिल्ट। तो इतना एक्सपेंशन जब समाज में हो गया, तो वो धर्म का पालन जो था वो बड़ा मुश्किल हो गया कि हम हमारा धर्म अब क्या रहा। धर्म मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हमारी ड्यूटीज, हमारे ऑब्लिगेशंस। तो समाज के लिए कुछ नियम, कुछ कायदे, कुछ कानून बनाए गए, वो स्मृति का। और कंट्रोवर्शियल मनुस्मृति सिर्फ इस वजह से है क्योंकि उसमें औरतों के लिए कुछ लिखा गया है, कुछ ऐसे सख्त कानून लिखे गए हैं कि जिसको आज का समाज एटलीस्ट अलाउ नहीं कर सकता। लेकिन हर समाज में, हर समय में उसके हिसाब से नियम बनाए जाते हैं। उस वक्त जो नियम थे वो बनाए गए थे, आज तो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते। लेकिन मनुस्मृति से लेकर देवल स्मृति के बीच में कम से कम 7, 8 या 10 स्मृति लिखी गई है। उसमें पाराशर भी है, उसमें बृहस्पति भी है, उसमें नारद भी है, बहुत सारे। फिर उस पर कमेंटेटर्स भी हैं, मेगातिथि हैं, जिमुत वाहन है। और देवल स्मृति इज द लास्ट स्मृति दैट मेंशंस अबाउट द अरब इन्वेजन ऑन सिंध। देवल स्मृति हिस्टोरिकल सोर्स भी है अरब इन्वेजन का, जो 712 के आसपास हुआ था। फिर कंपोजिट कल्चर 8th century, शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य का यहाँ पर आविर्भाव होता है। वेदांता स्कूल, जो फर्स्ट 6 स्कूल्स थे वो डिवाइड हो गए। फिर भक्ति लिटरेचर, इंडो इस्लामिक लिटरेचर, यही वो पीरियड है 8th century में जब इंडिया केम इन द कॉन्टेक्ट ऑफ अरब ट्रेडर्स फर्स्ट एंड देन अरब इन्वेडर्स। मुस्लिम्स जो हिंदुस्तान में आए हैं वो दो तरीके से आए हैं, एक ट्रेडर्स की फॉर्म में आए हैं, व्यापारी के फॉर्म में, जो सिंध के एरिया में आए थे, और इन्वेडर्स की फॉर्म में आए हैं जो टर्किश वाले रूट से आए हैं, यानी अफगानिस्तान के रूट से जो आए हैं, दे वर द इन्वेडर्स, जो टर्क से, जिनका मतलब टर्की से, इसीलिए उनको तुर्क कहा जाता था। जब आप TURK लिखेंगे तो हिंदी में वो तुर्क हो जाएगा। तो तुर्क जो है वो टर्की को ही कहा जाता था, तुर्किस्तान, टर्की। तो टर्की के रूट से वाया अफगानिस्तान जो इस्लाम हिंदुस्तान में आया वो थ्रू इन्वेडर्स आया है, और अरब के रास्ते से जो आया है वो वाया
ट्रेडर्स आया, जो सिंध में पहुंचे, मालाबार में पहुंचे, और इस तरह से दैट्स व्हाई वी सी द डिफरेंस इन द आइडियोलॉजीज ऑफ बोथ द ब्रांचेस ऑफ इस्लाम इन इंडिया फ्रॉम द टू डिफरेंट रूट्स। साउथ इंडिया में आप जाइए, इन केरला, तो देयर लैंग्वेज इज अरबिक एंड मलयाली, but in North India, if you see, the language of the Muslims is basically Urdu or Hindi in North India. But if you go to the Muslims of Bengal, they speak the Bengali. And if you go to the Muslims of Maharashtra, they speak the Marathi. So even among the Indian Muslims, you see that so much diversity is there. So how you can say that they are the one race? In India, this is the diversity that among even Hindus, agar aap dekhein, so Bengali Hindus are normally the non-vegetarians. They also take the some non-veg even during their puja days. But if you just take the Hindus of the Gujarat and Maharashtra and the certain Brahmins like Saraswat Brahmins are there, Parashari Brahmins are there. There are 7 types of Brahmins are there. So they are basically the vegetarians. और वेजिटेरियंस में भी बहुत सारे स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन होते हैं जो प्याज और लहसुन भी नहीं खाते। तो विद इन ए religion agar aap dekhein, within religion so much diversity is there. So how you can say that it is confined only just one idea? And then Sufi literature and traditions, and then third Renaissance, 18th century modern Indian literature, Swami Vivekanand, Ram Mohan. Ab Swami Vivekanand ka jo idea, that is the neo Vedanta. He is known as the father of modern Indian Renaissance. और विवेकानंद ये कहते हैं कि अगर आपको भागवत गीता को समझना है तो आप फुटबॉल खेल करके ज्यादा अच्छी तरीके से समझ सकते हो, बजाय इसके कि आप संन्यास में चले जाओ। तो पर्पस क्या है? बस फिजिकल एजुकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट। सोक्रेटिस ने कहा था, शायद कहा कि इन ए हेल्दी माइंड देयर लिव्स ए हेल्दी बॉडी देयर लिव्स ए हेल्दी माइंड। और विवेकानंद वही बात करते हैं। और विवेकानंद की बात वही है कि वेदांता को न्यू पर्सपेक्टिव में प्रेजेंट करना है। वेदांता डजंट लीड यू टू द एसेटिसिज्म कि आदि शंकराचार्य ने तो कह दिया और वो कहकर निकल गए कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। अब अगर जगत मिथ्या ही है तो फिर इस पूरे सब प्रपंच की जरूरत क्या है? तो ईश्वर ने इतनी सुंदर प्रकृति बनाई क्यों? वहीं सांख्या फिलॉसफी प्रकृति और पुरुष की बात कर रही है। तो इसीलिए डाइवर्सिटी है, लेकिन इसका ये मतलब है कि वॉट एवर यू आर प्रोपाउंडिंग दैट इज द अल्टीमेट। अल्टीमेट कुछ नहीं है भारतीय दर्शन में। जब शंकराचार्य ने कहा, उसी वक्त रामानुजाचार्य ने कह दिया कि ये विशिष्ट अद्वैतवाद नहीं है, ये विशिष्ट अद्वैतवाद है। फिर उसके बाद में और लोगों ने भी कहा, निम्बारकाचार्य हैं, माधवाचार्य हैं, अद्वैतवाद, शुद्ध अद्वैतवाद, द्वैत अद्वैतवाद। फिर उसी फिलॉसफी में बहुत सारे विजन्स आते चले गए। तो जब विवेकानंद की बात आई, 18th सेंचुरी, वो जमाना था स्वतंत्रता संग्राम का, और वहां पर रिलीजन को, या जब मैं रिलीजन टर्म ले रहा हूँ तो उसको आप धर्म समझिए, कि जो वेदांता फिलॉसफी है उसका यूज किया विवेकानंद ने नेशनल कॉन्शियसनेस के लिए। 1893 शिकागो में गए और वहां पर कहा, माय डियर ब्रदर्स, माय डियर अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो खड़े हो गए सब लोग, क्लैपिंग होने लगी। आज तक तो हमें किसी ने भाई कहा ही नहीं, और पहली बार किसी ने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कहा के, तो एक कनेक्टिविटी हो गई। तो दैट वाज द इंडियन कल्चर दैट रीच टू अमेरिका। और देखिए कि वेदांता का इतना बड़ा संत और एक सन्यासी, और वो अंग्रेजी में वहां पर एड्रेस कर रहा है। तो दैट वाज द ब्यूटी कि ज्ञान चाहे किसी भी भाषा में दिया जाए, जो एसेंस है उसका वो वही रहता है। तो इसलिए उन्होंने न्यू वेदांता की बात कही। और उसी जमाने में दयानंद सरस्वती भी हुए, उन्होंने कहा कि बैक टू वेदास। और फिर उसी जमाने में आप देखिए ये सर सैयद अहमद खां भी वही दौर था, 1867 में साइंटिफिक सोसाइटी उन्होंने बनाई, और उन्होंने मुस्लिम से कहा कि आज दौर है अंग्रेजी सीखो, और अंग्रेजी नहीं सीखोगे तो दुनिया की रेस में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो दे ऑल कॉन्ट्रीब्यूटेड इन देयर वेज, in their own ways, whatever they could do. Asiatic Society, Scientific Society, they were all the 18th century Renaissance. Now तो major themes Indian knowledge traditions में ये हैं: Indian languages, Sanskrit knowledge system, literature, Indian philosophical thought, arts traditions in India, and astronomy, mathematics, health, medicine, architecture, and so on. So now I'm just coming towards this. This is the literature what we have already discussed: Samhitas, four Vedas, Brahmanas, Aranakas, Upanishads, and these are the Smriti, Dharma Shastras. Then you see that Tripitakas,
the Buddhist literature, Vinay Pitak, Sut Pitak, Abhidham Pitak, and then the Agam literature, that is Jain literature. And you see, then Lokik Sahitya is also the part of Indian knowledge tradition, like epics, Mahabharata, Ramayana, then Kalidas and his compositions, then Arthashastra by Kautilya, Natyashastra, Bharatmuni, Kama Sutra by Rishi Vatsyayan, and Vishakdat, Mudra Rakshas. These are all the plays in Sanskrit plays. Then up to the next period, next level, Panchtantra and Hitopdesh, they are the wonderful books. There you can take the pedagogy of storytelling, dialogues, and then Ramayana, Mahabharata, all. राजशेखर ने एक बाल रामायण और बाल महाभारत भी लिखी थी, एनसीईआरटी में पढ़ाई जाती है 6 और 7 क्लास में. अब तो शायद चेंज हो गया सिलेबस, लेकिन मैंने अपने बचपन से देखी कि एनसीईआरटी में 6 में बाल रामायण और 7 क्लास में बाल महाभारत पढ़ाई जाती थी. तो हमने वहीं से सीखा, फिर उसके बाद में डिटेल किताबें पढ़ी हैं. स्कूल में ही सीखी थी महाभारत रामायण के बारे में. फिर वात्स्यायन कामसूत्र, ये 64 आर्ट्स का डिस्क्रिप्शन करते हैं. Many people have apprehension that it is just an erotic literature, but that is only one aspect. These are all the vocational traits and vocational skills, what our Prime Minister talks about the skill India. So what type of skills you have to learn? Vatsyayan's Kam Sutra suggested. These are the skills in which the traits are going on in different vocational schools. और अभी तो स्कूल लेवल पे कंपलसरी है एक स्किल सीखना. फिर ये डिटेल्ड है, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ. Another important aspect of Upanishads are basically the books of philosophical discourses, teacher and student, and from where they just discuss the subjects of superiority of God, soul, and life and death, and so on. But important thing is that queries about phenomena and questioning and natural quest. That is the basis of these books, and that are manifested in the Upanishads. So Upanishads are 110 in total number, but 10 Upanishads are very important. Shankaracharya interpreted them. Ish, Ken, Kat, Prashna, you all know it. So Upanishads and methods of teaching, जो आज का हमारा टॉपिक था, वो उपनिषद में सबसे ज्यादा आते हैं. फिर इंटरेस्टिंग चीज उपनिषद के साथ ये है कि 52 उपनिषद वर ट्रांसलेटेड बाय दारा शिकोह. ही वाज द ब्रदर ऑफ औरंगजेब एंड सन ऑफ शाहजहां. सिर अकबर के नाम से ही ट्रांसलेटेड 52 उपनिषद. और ये उपनिषद जो है नवाब सिराजुद्दौला के समय में 1754-75 के पीरियड में किसी एक फ्रेंच रेजिडेंट के हाथ लगे और उसने खरीद लिया इनको, और ये लेकर के वो यूरोप पहुंचा. यूरोप में वहां पर एक स्कॉलर था एंटिकिल ड्यूप्राउन. ये लैटिन स्कॉलर थे. इन्होंने उस फ्रेंच व्यापारी से खरीद लिया और उसको लैटिन में ट्रांसलेट किया 1801 में. और बाद में ये लैटिन के ट्रांसलेशन जो थे वो शोपेनहावर तक पहुंचे और शोपेनहावर ने उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया. एंड ही वाज सच ए पर्सन हु वाज मेस्मराइज्ड एंड वेरी मच इंस्पायर्ड बाय दिस उपनिषद्स, उसके कंटेंट से. और वो एक बड़ा फ्रस्ट्रेटेड फिलोसोफर कहा जाता है उसको, इसलिए कि वो बड़ा पैसिमिस्टिक था. ही ऑलवेज लुक्ड एट द डार्क साइड ऑफ द लाइफ. वो कभी सेटिस्फाइड नहीं था अपनी लाइफ से. उसने बिल्कुल लास्ट पार्ट पे ये कह दिया कि मैंने आज तक जो भी फिलोसफिकल थ्योरीज हैं वो सब बेकार है, फैलेसीज है. तो लोगों ने उसके नाम पे स्कूल्स बना लिए थे बड़े बड़े. वो बेचारे बड़े डिसअपॉइंटेड हो गए कि इन्होंने तो अपनी थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया. तो ऐसे व्यक्ति के हाथ में जो जीवन से निराश हो चुका था, जब उपनिषद पहुंचे और उसको पढ़ा तो उसको एक नया जीवन मिला. और उसका स्टेटमेंट है कि उपनिषद आर द सोलेस ऑफ माई लाइफ एंड उपनिषद आर द सोलेस ऑफ माई डेथ. यानी इससे मुझे मृत्यु के बाद भी शांति मिलेगी और मेरे जीवन में भी मुझे इससे शांति मिली है. तो ये शोपेनहावर तक जो पहुंचे हैं उपनिषद, वो दारा शिकोह के ट्रांसलेशन की वजह से पहुंचे हैं. तो वी कैन नॉट इग्नोर, we cannot delimit the contribution of such people who are not directly involved in the Indian knowledge tradition, but their work is very contributory. और बड़ा मतलब इस तरह के बहुत सारे लोग होंगे. जैसे हम कहते हैं ना कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बड़े बड़े नाम तो हम सब जानते हैं, लेकिन बहुत सारे हजारों लाखों ऐसे लोग रहे होंगे जिनका नाम आज कोई नहीं जानता. तो उनके कंट्रीब्यूशन को कम नहीं किया जा सकता. ऐसे नॉलेज ट्रेडिशन में तो भारत का जो ज्ञान है वो एक पूरे बहुत बड़े विशाल समुद्र की तरह है, और उसमें कितने मोती हुए हैं ये हमें नहीं पता. तो ये मोती कोई एक व्यक्ति या एक
एक एक डिस्क्रिप्शन निकाल के नहीं ला सकता। दैट्स व्हाई इट कैन नॉट बी, इट कैन नॉट बी अंडरस्टूड। और दूसरी किताब उसने लिखी मजमुल बहरीन, सिमिलैरिटीज बिटवीन सूफिज्म एंड वेदांता, because Dara Shikoh was of the view that there is a spiritual unity between Islam and Vedanta। तो उसने कहा कि जो इस्लामिक मिस्टिसिज्म है दैट इज सूफिज्म, और जो वेदांतिक मिस्टिसिज्म है, ये वैदिक मिस्टिसिज्म है, वो उपनिषद में है। तो उन दोनों की एक सिमिलर स्टडी, कॉम्परेटिव स्टडी की, जो मजमुल बहरीन के नाम से किताब है। इसका नाम होता है दो महासागरों का समंदर। एक महासागर उसने कहा सूफिज्म और दूसरा महासागर वेदांता फिलॉसफी। तो एक कहा जा सकता है कि इंडोलॉजी जो एक सब्जेक्ट बना, डिसिप्लिन बना, उसके अर्लीस्ट प्रिकर्सर में दारा शिकोह का नाम लिया जा सकता है। और दारा शिकोह से भी पहले अल बरूनी ने भी इसके ऊपर बहुत काम किया है। उसने योग वशिष्ठ का ट्रांसलेशन किया और उसने भागवत पुराण का ट्रांसलेशन किया अरबिक में, और अरब संसार तक भारतीय ज्ञान परंपरा पहुंची। फिर अरब के जो विद्वान थे वो हिंदुस्तान आए, हिंदुस्तान की किताबों को उन्होंने पढ़ा। इसीलिए आपको अरब में और हिंदुस्तान के नॉलेज ट्रेडिशंस में बहुत जगह सिमिलैरिटीज मिलती है। जैसे हमारे यहाँ पंचतंत्र लिखी गई तो उनके यहाँ अलिफ लैला लिखी गई। हमारे यहाँ जो मैथमेटिक्स जीरो का डेवलपमेंट हुआ, तो मैथमेटिक्स में जब आप पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो वो राइट हैंड साइड से पढ़ते हैं। ये अरबिक का तरीका है पढ़ने का। जब उसमें अलिफ बेते से लिखा जाता है तो राइट हैंड से वो अक्षर शुरू होता है। हिंदी में छोटा बड़ा लेफ्ट हैंड से शुरू होता है। तो इसी तरह से जब प्लेस वैल्यू पढ़ते हैं या उसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यूनिट, डिजिट, टेंथ ये पढ़ते हैं तो राइट हैंड से पढ़ते हैं। ये अरबों का तरीका है। तो सिमिलैरिटीज इसी वजह से मिलती हैं कि नॉलेज एक्सचेंज हुआ। 8th सेंचुरी में बगदाद में एक बैतुल हिकमा स्टैब्लिश हुआ था। वहाँ बहुत हिंदुस्तानी, इंडिया के संत, इंडिया के ऋषि मनीषी, उस जमाने के पंडित ब्राह्मण, ये सब जाते थे और डिस्कशंस में कंट्रीब्यूट करते थे। तो जो वो था हारून अल रशीद जो खलीफा था, उसको बड़ा शौक था इन चीजों का कि पूरी दुनिया भर से विद्वानों को बुलाना। तो इस तरह से भारतीय ज्ञान परंपरा ऑब्वियसली बाहर पहुंची और बाहर के लोगों ने फिर उसमें कंट्रीब्यूशन भी किया। फिर इसमें आगे बढ़ते हैं। लेक्सिक्स में सिर्फ मेरे पास अभी 5 मिनट और है, मैं इसको बस वाइंड अप कर रहा हूँ। वोकैबुलरी, सम इम्पोर्टेंट टर्म्स which are very necessary to understand before going into the deeper aspects of Indian knowledge traditions। कुछ लिटरेरी टर्म्स हैं जैसे वेदांगा और वेदांता। These are the two terms। वेदांगा means the 6 fundamental parts of literature like this। This is the Vedanga। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। These are the supplementary books which were written in order to understand the essence of the technical aspects of the Vedic literature। तो प्रोनाउंसिएशन अगर अच्छा नहीं है तो हम मंत्रों का उच्चारण नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा शिक्षा। शिक्षा जो है वो साइंस ऑफ फोनेटिक्स है। इसी तरह से परफॉर्मेंस, यज्ञ हमें करना है, कौन से देवता की आहुति करें हम, यज्ञ में सामग्री क्या होगी, यज्ञ की जो वेदी बनाएंगे उसकी नापतोल क्या होगी, मेजरमेंट क्या होगा, समय क्या होगा, ये सारा मेजरमेंट से रिलेटेड रिचुअलिस्टिक एस्पेक्ट्स कल्प में मिलेगा। ग्रामर, किसी मंत्र का अर्थ अगर निकालना है तो उसका ग्रामेटिकली कैसे उसको पढ़ा जाए, लिखा जाए, क्योंकि उस जमाने में ओरल ट्रेडिशन था, तो लिखा कैसे, उसको सुना कैसे जाए और उसका अर्थ क्या होगा, उसके लिए ग्रामर। कोई शब्द का अर्थ क्या है, उसके लिए निरुक्त, एटिमोलॉजी। तो ये सप्लीमेंट्री बुक्स थी। और जो वेदांता है, वेदांता इज नोन फॉर इट्स 2 मीनिंग। वन इज द लास्ट पार्ट ऑफ वेदास, अंतिम भाग वेदों का। तो लास्ट जो लिटरेचर है वैदिक लिटरेचर में, दैट इज उपनिषद। तो वेदांता उपनिषद को भी कहते हैं। और अनदर एस्पेक्ट दैट इज स्पिरिचुअल एस्पेक्ट इज कि दीज आर द बुक्स व्हिच टॉक अबाउट द अल्टीमेट एम्स ऑफ लाइफ। जीवन के जो अंतिम लक्ष्य हैं वो क्या है, मोक्ष की प्राप्ति, ब्रह्म की प्राप्ति, फना फिल्लाह। तो ये जो अंतिम लक्ष्य है जीवन का, उसकी बात जो किताबें करती हैं वो वेदांता है। वेद माने ज्ञान, वेद से बना है, वेद से विद्वान बना है। तो वेद माने ज्ञान और अंत माने अंतिम ज्ञान, यानी जिसके बाद किसी और ज्ञान की आवश्यकता ही ना रहे, वो वेदांता है। यहां से फिर शुरू होती है शंकराचार्य की फिलोसफिकल स्कूल्स, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, शुद्ध द्वैतवाद। ये यहाँ से फिर दूसरे स्कूल शुरू हो जाते हैं। मतलब जैसे वो शाहरुख खान एक फिल्म में कहते हैं ना कि पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई मेरे दोस्त। तो वेदांता पे आके अंतिम किताब तो आ गई लेकिन पिक्चर खत्म नहीं हुई है।
अब उसका इंटरप्रिटेशन चल रहा है, उसका रियलाइजेशन चल रहा है, तो यहाँ से फिर शंकराचार्य से दूसरी फिलॉसफी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन मैंने पहले ही कहा, पहले वाली फिलॉसफी खत्म नहीं हुई है, रूट सब वही है। यही भारतीय ज्ञान दर्शन है कि वो एक हमेशा सतत चलने वाली एक ऐसी धारा है जो सदियों से बह रही है और न जाने अनंत काल तक बहती हुई कहाँ जाएगी। ये एक ऐसी निर्मल धारा है जो बह रही है, जो कहीं बीच में रुकी नहीं है। उसमें लोग आते हैं, स्नान करते हैं, पवित्र होते हैं और चले जाते हैं, फिर नए लोग आ जाते हैं। इसी तरह से इसमें चीज है। फिर कुछ टर्म्स कॉमन टर्म्स हैं, जैसे ज्ञान, विद्या, योग, दर्शन, कर्म, गुरु, शिष्य, उपाध्याय, सुख, दुख भी तीन तरह के बताए हैं भारतीय दर्शन में, अधिदैविक, अधिभौतिक, आध्यात्मिक, फिर आचार्य, भक्ति, मोक्ष, ब्रह्म। कुछ स्पेशल टर्म्स हैं जो कि इंडियन नॉलेज आईकेएस का जो सिलेबस यूजीसी ने दिया उसमें ये स्पेशल टर्म्स हैं। पंचकोश, पंच महाभूत, पंच प्राण, है ना, या अधिकार साधन चतुष्टय, अधिकार चतुष्टय, अंतःकरण। अब ये सब चीज, अब चूंकि ये तो क्योंकि सिलेबस में मैंने पहले कहा कि सिर्फ इसको समझने के लिए ये सब समझना बहुत जरूरी है। अब डायरेक्टली अगर मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने बैठ जाऊं, अगर मैं मैथ्स आती हो तो मुझे आती नहीं, तो बगैर बेसिक मैथमेटिक्स पढ़े ट्रिग्नोमेट्री कैसे समझ में आ जाएगी। या लोग एसपीएसएस पे काम करते हैं, बगैर टी टेस्ट और काई स्क्वायर और बगैर फंडामेंटल स्टैटिस्टिक्स को पढ़े हुए आप एसपीएसएस पे भी काम नहीं कर सकते। तो सीधे सीधे पंचकोश, पंच महाभूत और पंच प्राण पढ़ लेना बगैर बेसिक चीजों को समझे, इट्स नेक्स्ट टू डिफिकल्ट एस्पेक्ट्स। त्रिरत्ना, थ्री डेड, सिक्स प्रमाण, 33 करोड़ देवी देवता, दीज आर ऑल्सो द स्पेशल टर्म्स। देन नॉन ट्रांसलेटेबल, जिनको आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट ही नहीं कर सकते, धर्म, आत्मा, कर्म, पुरुषार्थ, जाति, चतुर्वर्णा, त्रिगुणास, जिसमें सतो रजो तमो। अब बताइए आप सात्विक गुण को क्या कहेंगे, राजसी गुण को क्या कहेंगे, या तमसी गुण को आप अंग्रेजी में कौन सा नाम देंगे। ये नॉन ट्रांसलेटेबल है। परा और अपरा विद्या, अंग्रेजी में भले ही आप कह दें कि वर्ल्डली नॉलेज और स्पिरिचुअल नॉलेज, लेकिन ये वही समझ में आएगा जिस उपनिषद में इसका जिक्र है। ऐसे 3 योगाज। अब योगा तो सब करते हैं, लेकिन एक योग वो भी है जो लॉर्ड कृष्णा ने श्रीमद् भागवत गीता में बताया। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ योगा, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। कर्म योग क्या है कि यू कैन अचीव द गॉड बाय योर एक्शंस। जैसे दुकानों पे आप जाइए, वहां लिखा होता है मेरा ग्राहक ही मेरा देवता है, तो वो अपने ग्राहक को इतनी ईमानदारी से अपनी चीजें बेचता है और इतने मन के साथ अपनी चीजें बेचता है कि उसमें ही उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है, ईश्वर खुश हो जाता है। तो यह कर्म योग, अपने कर्म में इतना ध्यान देना कि ईश्वर तक आप पहुंच जाइए। फिर ज्ञान योग है, अध्ययन से, मनन से, चिंतन से। और फिर उसके बाद भक्ति योग है। तो ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ये भागवत गीता का योग है। और एक योग फिलॉसफी है, सांख्य योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांता। एक वो है जो पतंजलि का है, तो पतंजलि का योग सूत्र वो अलग है, और गीता का 3 योगास ये अलग है। फिर महावाक्यास, आप सबने सुना होगा, तत्व त्वम असि, अहम ब्रह्मास्मि। ये जो अहम ब्रह्मास्मि है, मैं ही ब्रह्म हूं, ये अल्टीमेट स्टेज है मोक्ष से जस्ट पहले की। कि वहां फिर आपको जीवन और मृत्यु में कोई फर्क नजर नहीं आता, क्योंकि आत्मा और परमात्मा एक हो गए हैं, एसेंस समझ में आ जाता है उसका, जिसको सूफियों के यहाँ फना फिल्ला कहा जाता है। तो ये महावाक्यास है। इसी तरह से फिर अक्रॉस द कल्चर जब पर्शियन, उर्दू, अरबिक ये आए, तो इसकी टर्मिनोलॉजी ये इसमें और ज्यादा एनरिच किया इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन को। तो ये महावाक्यास है, मैंने इसलिए यहाँ पर एग्जाम दे दिया। एग्जाम्पल, प्रज्ञानम अहम ब्रह्मास्मि, तत्वत्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्मा, ये सारे महावाक्यास हैं। तो दीज आर ऑल द नॉन ट्रांसलेटेबल्स। यहीं पर मुझे लगता है बात को खत्म करते हैं, क्योंकि चीजें बहुत हैं अभी। इट्स नॉट easy to just wind up in just one lecture। तो ये अपरा अपरा विद्या की बात है। फिर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पर इसका भी ले सकते हैं, हालांकि मैं लेकर सब आया था, अंतःकरण, चतुष्टय, ये सब ये उपनिषद से है। कंटिन्यूटी एंड कंसेंसस में अगर आप देखें कि हाउ इंडियन नॉलेज ट्रेडिशंस मूव फॉरवर्ड थ्रू द एजेस ड्यूरिंग मेडिवल पीरियड, देन मॉडर्न इट रीचेस। गुरुकुल से आप बात करें, चैतन्यास कीर्तन की बात करें, या बुद्धा सेमिनारीज की बात करें, या बंगाल में जो बाउल सिंगर्स होते हैं, बाउल सिंह को कहते हैं, मुनेर मानुष उनका टैग वर्ड है, या उनका जो फिलॉसफी है, जो दर्शन है। फिर सूफी वर्लिंग है, फिर बाबा नानक द लंगर है जो सिखिज्म है, उसमें आप देखिए वो सेवा करते हैं, खाना खिलाते हैं लोगों को।
फिर डायलॉग्स हैं बुद्धिज्म में, देन कंटिन्यूटी कबीर तक पहुंची है, फिर कबीर से आप और रामानंद हैं, लालन फकीर, बाउल्स ऑफ बंगाल, गुरु नानक, मीराबाई, स्वामी हरिदास, तुलसीदास, और इसी तरह से सेंट्स ऑफ कश्मीर तक आप पहुंच जाते हैं। वहां पर एक शेख नूरुद्दीन ऋषि है। फिर अलबरूनी की बात करते हैं, ये पहले हो सका अकबर के टाइम पे जो ट्रांसलेशंस में रज्मनामा महाभारत का ट्रांसलेशन है, किस्सा नलोदमन, नल दमयंती कथा, कलिलाउद्दीमना पंचतंत्र का ट्रांसलेशन। फिर ये वो किताबें हैं जो मैं अभी बता रहा था आपको कि अलकबानी, अब ये हौजुल हयात और बहरुल हयात, ये दो किताबें जो अमृत कुंड का अरबिक अनुवाद है, शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही ने किया, और बहरुल हयात अमृत कुंड का फारसी अनुवाद है, शेख मोहम्मद गौस ने किया। अब यही किताबें अवेलेबल हैं, संस्कृत का ओरिजिनल बुक, ओरिजिनल जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो अब नहीं है। फिर इसी तरह से अलकबानी है, सांख्य दर्शन, पतंजलि योग सूत्र, ये अलबरूनी ने इसका ट्रांसलेशन किया। अब्दुल रहमान चिश्ती ने भागवत गीता के ऊपर सूफी इंटरप्रिटेशन लिखा मिराकुल हिकायत के नाम से। तो दीज आर ऑल द थिंग्स। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस। थैंक यू सो मच सर। आपके प्रेजेंटेशन जिस तरीके से आपने दिया सर, हमें बेहद खुशी है, और जिस तरीके से हम इस कंसेप्ट को आज समझे हैं, आज से पहले तो शायद कभी भी नहीं। इंडियन नॉलेज सिस्टम की जो बारीकियां आपने समझाई और जितने आसान तरीके से, उसके लिए हम सर बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आपका। थैंक यू। और आपका जो हिस्टोरिकल कम फिलोसॉफिकल कम नरेटिव और सोशल एस्पेक्ट से कनेक्ट करते हुए सारे, मुझे लगता है कि इतने सारे कंसेप्ट्स को आपने इलेबोरेट किया है, एक्सप्लेन किया है यहाँ पर, कि एक लेक्चर में तो कर पाना ये बहुत ही मुश्किल होता है। बट सर आपने जितने आसान तरीके से इन सबको शामिल करते हुए यहाँ पर हम सबको जो एनलाइट किया है, उसके लिए हम बहुत थैंकफुल हैं आपके सर। आपने इस सेशन को ज्वाइन किया और हमें इतनी अच्छी बातें बताई एनईपी के कंटेक्स्ट में, इंडियन नॉलेज सिस्टम को जो हमको समझाया है, जो बताया है, उसके लिए हम अगेन थैंक यू करते हैं आपका सर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू। सभी पार्टिसिपेंट प्लीज सेकंड सेशन में समय से ज्वाइन करिएगा, तब तक के लिए थोड़ा ब्रेक ले लीजिए प्लीज। जी सर, थैंक यू सर। ओके, Thank you so much, sir.